Welcome to next part of the session. In this part, we'll discuss about electronic commerce, basically the classification part of the electronic commerce. Here we have four types of electronic commerce, that is B2B, B2C, C2B and C2C. Uh, Specifically, if I'm talking about uh, हमारे पास दो तरीके के बायर्स होते हैं, दो तरीके के सेलर्स होते हैं. Buyer can be a business, buyer can be a customer. In the same way, if we talk about sellers also, it can be a business, it can be a customer. So if we are talking about B2B, then it's a kind of business to business transaction. B2C is business to consumer, because here what happens, the business directly communicates with the consumer. In the same way, C2B is basically consumer, business buys back something from the consumer directly, and C2C, it's something like bidding a website or something of this kind. If we talk about some examples, so for B2B, you can find various companies like Cisco, then Microsoft, and other companies of the same kind are there. If we talk about B2C, you can find indiatimes.com, irctc.com, and many more websites of the same kind. C2B, it's a kind of buyback type of service. There is a site priceline.com, it provides you this service. Then if we talk about C2C, there is olx.com, there is Bazi, there are many more in this category also. Now, if we are talking about e-commerce classification, so here you can find business to consumer, and this is what we have discussed in a few minutes ago. इसके अलावा हम दो क्लासिफिकेशन इसमें और ऐड करते हैं. समटाइम्स इट इज़ बिजनेस टू गवर्नमेंट एंड समटाइम्स इट इज़ बिजनेस टू एम्प्लॉय ऑल्सो. Some companies provide some specific service to their employees, like you can see uh, Tata group of companies. What they do is they have a portal for their own employees. They can buy something from there. uh, इसमें इनको डिफरेंस क्या पड़ता है कि if they buy something from the Tata stores directly from the website, in that case टाटा को बेनिफिट क्या पड़ता है कि उनको बल्क में सामान खरीदना होता है, तो इस वजह से उनको कॉस्ट कम आती है, और एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट ये होता है कि मार्केट से सस्ते रेट पे उनको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. सेकेंडली, बिजनेस टू गवर्नमेंट के केस की बात करें तो कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि गवर्नमेंट को कुछ बाय करना होता है. इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट अगेन कम्स अंडर, you can consider government as B2B, but government जो है वो थोड़ा सा उससे ahead है. It's a rule making agency, so that's why we put it into some separate level. So B2G is somewhat different from B2B, but the business is there in B2G also. Now, if we talk about electronic commerce in B2B scenario, here what happens, किसी कंपनी को एक प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने होते हैं, अपने सप्लायर से कम्युनिकेट करना होता है. सो फॉर दिस B2B business, that means business to business commerce takes place.
अगर इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिकली कर देते हैं तो इसमें दो फ़ायदे होते हैं। नंबर एक, हम अपनी रिक्वायरमेंट इमीडिएट मैनर में अपने सप्लायर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंड बेनिफिट, तो दूसरा बेनिफिट आपको ये होता है कि इमीडिएट बेसिस पे आप मैसेज ट्रांजैक्शन कर ले रहे हैं। आपने सेकेंड सेकेंड पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट और इतने अमाउंट में चाहिए और इस डेट से पहले चाहिए, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन फ्लो फास्ट होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट बना रहता है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कोई जाएगा, फिर चेक लेके आएगा, चेक लेके आएगा तो फिर उसको डिपॉजिट कराएगा, तब जाकर के वो क्लियरेंस आएगी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो लॉन्गर वन। तो इसमें कंपनी का पैसा बहुत ज़्यादा देर तक के लिए फंसा नहीं रहता है, या किसी भी सप्लायर का पैसा नहीं फंसता है। सो सप्लायर ऑल्सो वांट्स कि उसको इसी तरीके से B2B सिनेरियो में ही वर्क करना हो, ठीक है। खांसी है। So, if I am talking about business to business, there is one case, that is supplier and the communication with the supplier. Sometimes we also communicate with the buyers also, ठीक है। कुछ अगर बल्क में बायर बाय करने वाली कंपनी है तो उससे भी कम्युनिकेट करने के लिए हम B2B केसेस को ले लेते हैं। मीन्स इफ़ सपोज future groups is communicating with some client, some manufacturer, say some Nestle, for example. Future group is communicating with Nestle, there is some transaction in between them, तो ये आपका जो है बायर है, फ्यूचर ग्रुप, एंड इन दिस केस योर Nestle is a kind of centric unit. Sometimes intermediaries भी इसमें बीच में आते हैं कि intermediaries और centric unit से communication होता है. So all the three cases comes in under B2B. Now B2B supplier clinic, supplier centric की बात करें तो here what we do is we communicate into e-commerce only for supplier. Suppliers means the application that we are using is centric to the supplier, and whosoever is supplying something उसको हमारे पोर्टल पे आके इन्फॉर्म करना होगा कि हाँ मुझे ये रेट्स देने हैं एंड सो ऑन। सो सप्लायर के हिसाब से उस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया होता है। देयर इज़ बायर सेंट्रिक। बायर सेंट्रिक में क्या है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है दे आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एंड जो उसको परचेज करने वाला है, जो परचेज करने वाली कंपनी है, वो उनके पास बायर के पास सॉरी सेलर के पास जाती है और उससे कम्युनिकेट करती है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट इतने में चाहिए। सो इन दिस कंडीशन इट इज़ बायर सेंट्रिक। इसके अलावा कभी कभी इंटरमीडिएटरीज बीच में आते हैं। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी दैट helps you to communicate between buyer and the supplier. So for example indiamart.com is there, ठीक है। तो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं ये आपकी इंटरमीडिएटरी सेंट्रिक होती हैं। नाउ if we talk about B2C, here the consumer can interact directly with the manufacturer, and can order anything from the manufacturer side.
इसमें क्या होता है कि बिजनेस से डायरेक्टली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। दूसरी बात, आपको राउंड द क्लॉक शॉपिंग कर सकते हो आप, ठीक है। और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ द सर्विस, सपोज सम काइंड ऑफ सर्विस इज देयर, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं या आप वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी पेमेंट अगर आप ऑनलाइन करते हैं, जिस समय आपने सर्विस के लिए पेमेंट की उसके अगले मिनट से सर्विस स्टार्ट। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट और वेब सर्विसेज। सपोज़ मैंने मोबाइल का इस समय क्या कहते हैं कि रिचार्ज नहीं कराया, ठीक है। इफ़ आई एम यूजिंग अ प्रीपेड मोबाइल, आई हैवंट रिचार्ज इट, एंड द बैलेंस इज़ अराउंड 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़, ठीक है। रात के 2 बज रहे हैं और मुझे ध्यान आया कि अभी मुझे एक कॉल करनी है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन गो टू सम B2C site, and from there I can recharge my mobile immediately. यही चीज़ अगर मैं रात के टाइम में अगर सपोज़ शॉप पे जाके कराना चाहूँ, तो एक तो मुझे ऐसी शॉप ढूंढने में टाइम लगेगा जो उस समय खुली होगी, एंड सेकेंडली अगर मान लिया कि कोई खुली हुई शॉप मिल भी जाती है, तो वहाँ जा कर के फिर उसे रिचार्ज कराना और फिर वापस कॉल करना, दैट बिकम्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड समटाइम्स इट इज़ चार्ज्ड एक्स्ट्रा ऑल्सो। बट इन दिस सिनेरियो मर्चेंट हमको डायरेक्टली सर्विस देता है कि आप B2C साइट पे जाइए और वहाँ से डायरेक्टली आप क्या कहते हैं कि अपना मोबाइल रिचार्ज कर लीजिए। सो अगर आप मोबाइल इस तरीके से रिचार्ज करते हैं, इन दैट कंडीशन यू विल गेट द इंस्टेंट रिचार्ज विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट एट 2 o'clock नाइट ऑल्सो। सो ये आपको जो है कंज्यूमर साइड से बेनिफिट होता है। बायर साइड सेलर साइड से अगर बेनिफिट की बात करें, तो राउंड द क्लॉक उसकी शॉप खुली रहती है, डायरेक्ट वो कस्टमर से डील करता है, दैट्स वाई जो भी बीच के लोग होते हैं उनको पैसे नहीं देने होते, और कस्टमर को वो ऑनलाइन सर्व कर सकता है। जैसे एट द मोमेंट आई क्लिक्ड ऑन पे एंड आई हैव गिवन माई क्रेडेंशियल्स, I can find that I have received the balance in my mobile. In this model, if we are talking, there are so many companies which are working on different type of products. Like there are some companies, they provide you videos, softwares, and music clips, something some sort of books also, ठीक है। इसके अलावा आप डिफरेंट टेंजिबल गुड्स भी परचेज कर सकते हैं। इवन द कंपनी लाइक डेल जो है, ये आपको ऑनलाइन अपना अगर नया लैपटॉप आप ख़रीद रहे हैं, तो डेल प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि यू कैन कस्टमाइज़ योर लैपटॉप बिफोर बाइंग। In the same way, there is Kodak. कोडक के फिल्म रोल्स भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इवन आपने यहाँ से ऑर्डर दिया, उसके एक दिन के भीतर आपके पास शिपिंग आ जाती है, ठीक है। कई केसेस में हम अगर सपोज़ कंप्लेंट्स वगैरह देना चाहते हैं कि सपोज़ आई हैव फाउंड सम इशू इन सम प्रोडक्ट एंड आई वांट टू कम्युनिकेट विद द मैन्युफैक्चरर, in that case also B2C sites are more beneficial. They provide you some facilities so that you can directly communicate them कि ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। Now C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, यहाँ पे बायबैक की फैसिलिटी होती है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको कि कंपनी वापस बायबैक करना चाहती है एक लोअर रेट पे, या कुछ स्पेशल ऑफर्स दे करके कि आप ये प्रोडक्ट ले आओ और इसके बदले ये ले जाओ। फॉर एग्जांपल पुरानी कार लाओ और उसके साथ में नई कार में
आप कुछ पैसे की छूट ले जाओ, ठीक है। सो इन दिस वे you can use C2B electronic commerce sites also. There is an example of this type is Priceline.com. Now C2C, मेरे पास एक यूज्ड फ़ोन है, मैं उसे सेल करना चाहता हूँ। अगर मैं उसे सेल करने के लिए मार्केट में निकलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा कि किसको उस तरीके का फ़ोन चाहिए, एंड देन I get to know that this person is looking for that same type, and then I can sell. यही चीज़ अगर मैं ऑनलाइन मीडियम से करता हूँ, OLX.com या Bazi.com, eBay.com आर देयर, इनमें से किसी पे भी ऐड दीजिए, विदिन 24 आवर्स आपको ऐसे लोगों की लिस्ट मिल जाएगी जो उसी तरीके का फ़ोन ढूंढ रहे हैं। जो आपके सबसे पास रहता हो आप उससे कम्युनिकेट करके उसको सेल कर सकते हैं। इवन आप बिड करवा सकते हैं उनके बीच में कि नहीं, जो सबसे ऊपर की बोली लगाएगा बस वो ले जाएगा। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके इंटरनेट और वेबसाइट्स के, ठीक है। कुछ नए टर्म्स आ जाते हैं इंटरनेट नेटवर्किंग के। तो पहले वो समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, सो सबसे पहले यहाँ पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करने के लिए वी गो फॉर इंट्रानेट। इंट्रानेट जो होता है ये कंपनी का एक अपना नेटवर्क होता है जो कि उसके विद इन द ओन ऑर्गेनाइजेशन चलता है। इट विल नॉट वर्क आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसकी बात करें तो ये डिफरेंट टाइप के नेटवर्क सिक्योरिटीज़ के हेल्प से रोका गया होता है, जैसे फायरवॉल इज़ देयर जिससे इसे ऑथेंटिकेट किया गया होता है। सो द मेंबर्स हु आर ऑथराइज्ड ओनली दे कैन एक्सेस दिस। इसके अलावा इंटरनल कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो जो कंपनी का इंटरनल नेटवर्क है वही क्वालिफाई करता है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव some kind of protocols like TCP/IP and HTTP, and different type of servers are taken place. किसी स्टैंडर्ड वेब सर्वर के हेल्प से किसी कॉर्पोरेट के अंदर अगर कोई वेब एप्लीकेशन चलाया जाता है जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो वी कैन कंसीडर दैट टू बी अ इंट्रानेट। एंड इस इंट्रानेट का बेनिफिट क्या है? हियर वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन क्रिएट अ बिजनेस टू एम्प्लॉय काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इसमें बिजनेस टू एम्प्लॉय हम क्या कहते हैं कि ई कॉमर्स कर सकते हैं। एंड इन दिस कंडीशन जब भी एम्प्लॉय फ्री होगा वी कैन सी द प्रोडक्ट, एंड जब भी एम्प्लॉय को लगता है कि येस दिस प्रोडक्ट इज़ गुड तो वो उसको परचेज़ कर सकता है। एंड इवन कुछ कंपनियां इसमें फैसिलिटी देती हैं कि आप इसको जो है इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू पे बैक इन इंस्टॉलमेंट्स it will be deducted from your salary also. Now electronic commerce applications की बात करें तो इसमें आपकी ebay.com is there. It's basically a kind of auction site where you can create auctions like आपने कोई प्रोडक्ट रखा, उसके बाद बाकी उसमें जो भी उसके कंज्यूमर्स हैं वो आए और उन्होंने चेक किया कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज़ ओके और नॉट, एंड देन दे हैड मेड बिड ऑन दैट कि मुझे ये प्रोडक्ट इतने में चाहिए, ठीक है। एंड यू कैन फिक्स दैट बोली इतने के ऊपर जाएगी या इतना देर हो जाएगा तो उसके बाद हम सेल कर देंगे। इसके अलावा अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के एप्लीकेशन की तो दूसरा आपका जो केस आता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एक आज के डेट में बहुत अच्छा फीचर है जिसमें आप अगर किसी को पैसे भेजना चाहते हैं
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या अपने बिल्स पे करना चाहते हैं, मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, इन ऑल द केसेस यू हैव टू लॉग ऑन टू योर बैंक्स वेबसाइट, and in that after that you have to just put your credentials and you can send money to anybody or you can receive money from anybody. आप विद इन द कंट्री अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के हेल्प से अगर पैसे भेजते हैं तो वो विद इन अ सेकेंड पहुंचता है. इसके अलावा अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ ऑल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्चिंग. Here what we do is, if suppose I am looking for some product, so I had thought of that product के अंदर ये फीचर होने चाहिए. हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला या कोई भी वेब ब्राउज़र खोला और उसमें हमने अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है, जो भी उसके रेस्पेक्टिव लोकेशंस थी, कंपनीज थी, उनकी इंफॉर्मेशन मिल गई. हमने उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया और उसके बाद डिसाइड किया कि येस आई हैव टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम दिस सेलर. ठीक है, एंड वी कैन बाय इन दिस वे. Many if we talk about electronic searching, there are so many search engines like search.yahoo.com, then google.com, Alta Vista, Khoj, India 123, Ask, Bing. Now इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक और एप्लीकेशन होता है, दैट इज़ लर्निंग. लर्निंग के लिए हियर वी हैव 2-3 types of options, like if you want to take classes online, you can go for some portals. They provide you online classes. Sometimes it is live class. Live का मतलब ये है कि जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो दूसरी साइड कोई क्लास लेने वाला बैठा है, एंड वट एवर यू आर आस्किंग, आपको आंसर देने के लिए वो वहाँ पे बैठा हुआ है. ही इज़ आंसरिंग द क्वेश्चंस. There can be computer based trainings, some kind of training sessions that are created just for static computer based communications. उसमें क्या होता है कि आपको जैसे सपोज मुझे कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, for that what we do is we create some kind of flash or animation and we send it to the user. यूज़र उस एनिमेशन को देख के समझ जाता है कि what actually has to be done, what is actually going on. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो there are some quiz type of services. They provide you some kind of quiz. You can find some videos, as you can see this video also. ये वीडियोस जो हैं किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन को लेकर के बनाए गए होते हैं, एंड दे इन्फॉर्म यू अबाउट द टॉपिक, दैट हाउ एक्चुअली द थिंग्स आर गोइंग ऑन. That's all for this part. In next part of the session, we'll discuss about some more applications of electronic commerce. Thank you for now.